Let's start exercise 5.2. The first question says that fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, and AN is the nth term of the AP. So in this question, we are going to use the formula, if you remember, to find the nth term, that is AN is equals to A plus N minus 1D, where A is the first term, N is the term, and D is the common difference, and AN is the nth term. Correct? So let's do the first part. That is, here you have to find the nth term. So AN is equals to A plus N minus 1D. The value of A is 7. Just substitute the values from the table. And the value of N is 8 minus 1. And the common difference D is given as 3. So here it is 7 plus 8 minus 1 is 7 into 3. So here 7 plus 21, that is equals to 28. So the nth term in the first part is 28. So let's write here 28. Now let's move to the second part. Here you have to find the common difference D. Again we will write the formula first and then we will substitute the values from the given table. So nth term is given as 0. The first term is minus 18 plus N is 10 minus 1 and D you have to find. So 0 is equals to minus 18 plus 9D. So 9D is equals to 18. D is equals to 18 over 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18. So the common difference D is 2. Correct? Now let's move to part 3 here. Let me write it here. And here you have to find the first term. That is the A. So A plus N minus 1D. Nth term here is minus 5 is equals to A we have to find plus N is 18 minus 1 and D is minus 3. Minus 5 is equals to A plus 18 minus 1 is 17 into minus 3. So minus 5 is equals to A minus plus minus 7 3s are 21, 3 1s are 3, 4, 5. So here A is equals to minus 5, minus 51 उधर जाएगा क्या हो जाएगा plus 51. So A is equals to 11 में से 5 गए 6 and 4 46. So the first term of this is 46. Okay. So let's do the next sum, next part, that is the fourth part. AN is equals to A plus N minus 1D. Now ANth term is given here is 3.6 is equals to A is minus 18.9 plus N is, we have to find the N. So N minus 1 and D is 2.5. So here it will be 3.6. अब ये minus 18.9 इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा plus. So 18.9 is equals to N minus 1, 2.5. Now here add it. 9 plus 6, 9, 10 and 1, 15. So यहाँ हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो जाएगा 2. So 22.5 is equals to N minus 1. अच्छा ये 2.5 नीचे आ जाएगा यहाँ. अगर आप चाहो तो इधर मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है? This is a little shorter method, so I am going to use it. Now अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा. 5 5s are 25. So here 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 1s are 5 और ये हो जाएगा 5 9s are 45. So N minus 1 is equals to 9 and N is equals to 9 plus 1. So N is equals to 10.
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 10. Let's write it here, 10. Now let's do the last part, that is the fifth part, and let me change the pen color. So again we'll write the formula first. an is equals to a plus n minus 1d. Now nth term we have to find, okay, and the first term is 3.5 plus n is 105 minus 1 and the common difference is 0, okay. So 3.5 ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, you get the 0. So nth term कितना आ गया? 3.5. So let's write here, it's 3.5. अरे ये तो दिख ही नहीं रहा. Okay, let's change and write it with yellow. This is 3.5. Done. So now let's move to question number 2. Let's read what it says. Choose the correct choice in the following and justify. First one, the 30th term of the AP. So here AP is given and you have to find the 30th term. You know how to find the term, right? So let's use the formula. an is equals to a plus n minus 1d. तो यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है. मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? an फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है ना? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास वैल्यूज हैं क्या? a की वैल्यू है, यस वी हैव a 10. क्या लिखते हैं? चलो a इज इक्वल्स टू 10 और n कितना है? n हमें पता है कि हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो दैट इज n इज 30 एंड व्हाट इज d? सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से 10 को करो या 4 में से 7 को करो, तो कितना आ जाएगा? -3. ठीक है, ओके. सो लेट्स राइट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. a है हमारी 10 प्लस n है हमारा 30 minus 1 और d है -3. So here it will be 10 plus 30 minus 1 is 29 into -3. So this will be 10 minus 3 9s are 27, 3 2s are 6, 7, 8, 87. Now subtract here, it will be 7 and 8 में से 1 गए 7. So -77. तो है क्या यहाँ पर? Yes. So this is the 30th term, means कि A30 and कितना है वो? -77. In the same way we will find the second one and it is here 11th term. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? A11. ठीक है, तो क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो. अब आपको पता है a प्लस 10d, ठीक है ना? और यहाँ पे a कितना है? द फर्स्ट टर्म हियर इज -3 प्लस 10 इंटू डी. डी कितना है? चलो निकालो. -1/2 माइनस ऑफ -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 3/1, तो -1, 3 2s are 6 over 2, ये हो जाएगा 5/2. तो d हो गया हमारा 5/2. यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 5/2 को, तो दिस इज 2 1s are 2, 2 5s are 10, -3 प्लस 5 5s are कितना हो जाएगा? 25. 5 में से 3 गए 2, सो 22. और साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा प्लस का, तो 22 है. Yes. So this is what? This is your 11th term. 8, 11 is 22. Now let's move to question number 3 and let's see what it says. In the following APs, find the missing terms in the box. Term is 2-26. So let me write here 2 box dash means you have to fill this and 26. Now you see here you have the first term, you have the third term. So you have to find the second term. So what you need is you need the common difference D. तो कैसे find out करेंगे? We have the third term A3. So A plus third term means you will get here 2D. आप n-1 भी लिख सकते हो. तो I will write it here 2D. तो third A थर्ड क्या है? कितना टर्म है वो? 26.
first term is 2 plus 2d. So here 26 minus 2 is equals to 2d. So here it will be 2d is equals to 24. So d is equals to 24 over 2. कितना हो गया? 12. तो ये क्या है? d है हमारे पास 12. तो now you can easily find out a2. तो that will be a2 is equals to what? a plus d. a2 is equals to a. First term कितना है? 2 plus d difference कितना आया है? 12. So a2 is equals to 14. So this is the missing term here is 14. Let me write here. It is 40. ठीक है? Let's move to the second part. That is, okay. So here dash 13 dash 3. देखो यहाँ पे अब आपके पास फर्स्ट टर्म नहीं है, तो यू कैन नॉट गेट द कॉमन डिफरेंस डी. यू कैन नॉट कैलकुलेट डी. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे केसेस में यू विल गेट टू इक्वेशंस. जहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो टर्म्स हैं, देखो आपके पास a2 है और a4 है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू विल गेट इक्वेशंस, टू इक्वेशंस. हाउ? यू सी a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d. ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई. अब a2 की वैल्यू डाल दो, कितनी है? 13. सो a प्लस d, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब a4 क्या है? a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. अब a4 की वैल्यू कितनी है? 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन. नाउ बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, क्या है एलिमिनेशन मेथड आपका? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ? 3. और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? a प्लस d इज इक्वल्स टू कितना है? 13. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से चेंज द साइन, ये कट जाएगा. 3 माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2d इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 10. तो d इज इक्वल्स टू 10 ओवर माइनस 2. तो d आ गया माइनस 5. ठीक है, अगर d 5 आ गया आपका, तो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट इन किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल दो. तो यहाँ क्या आ जाएगा? a minus 5 is equals to 13. Therefore, a is equals to 13 plus 5. a is equals to 5, 6, 7 and 8. 18. तो ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 18. ठीक है, अब इसी तरह आप कौन सा टर्म फाइंड आउट कर सकते हो? आपकी कौन सी टर्म अब मिसिंग है? दैट इज a3. तो दैट इज a प्लस 2d. a3 इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 18, 2 और d हमारे पास है माइनस 5. सो 18 माइनस 2 5 आर 10. सो 18 माइनस 10 इज 8. तो ये क्या आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास a3. तो दिस इज 8. डन हो गया? फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ. नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट, दैट इज गिवन एज 5 dash dash and 9 1 by 2. Okay, now you see here you have the first term a, you have to find a2, you have to find a3 and a4 is given. तो देखो जब भी फर्स्ट टर्म है और कोई भी दूसरा एक टर्म है, तो आप इजीली पहले क्या निकाल लोगे? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो चलो निकालते हैं. यहाँ पे a4 दिया हुआ है हमारे पास, a4 है, ठीक है ना, अदर देन द फर्स्ट टर्म. तो इट विल बी a प्लस 3d. a4 कितना है? 9 1 by 2. और a फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 प्लस 3d. ये हो जाएगा 9 to the 18 plus 1 19 over 2. 5 प्लस 3d. ठीक है, 3d को एक तरफ रखो. 19 over 2, 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस 5 हो गया. ये हो गया 19 minus 5 to the 10 over 2. So this will be 3d is equals to 19 minus 10 is 9 over 2. d is equals to 9 over 2 और d उधर जाके नीचे चला गया. 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया 3 by 2.
ये हो गया हमारे पास डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब एक बार आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया, अब आप A2 और A3 आराम से निकाल सकते हो, है ना। A3 निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा A3 का A प्लस D, 2D। तो हमारा A कितना है इस टर्म में, A कितना था, A था देखो यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू D कितना है, D है 3/2। तो 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया 5 प्लस 3, तो 5 6 7 8। ठीक, क्या आ गया हमारे पास A3 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ लिखो A3 आ गया हमारे पास, A3 निकाला ना हमने, तो ये आ गया 8। अब हमें A2 भी निकालना है, तो A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। तो A कितना है 5, D कितना है 3/2। इसको सॉल्व करो, 5 2 ज़ 10 प्लस 3/2, 10 प्लस 3 इज 13/2। ये हो गया हमारी सेकेंड टर्म, दैट इज 13/2। डन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स डू इट हियर एंड लेट्स चेंज द पेन कलर। नेक्स्ट वाली टर्म है हमारे पास, let's write the question from here. It's -4 and last term is 6. Okay. So it's -4, 1, 2, 3, 4 and here it is 6. So how many terms we have to find? We have to find A2, A3, A4 and A5. अब देखो यहाँ पर फिर से आपके पास A है और हमारे पास लास्ट टर्म A6 है। तो फर्स्ट टर्म और कोई भी एक टर्म है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D। सो A6 इज कितना है 6, फर्स्ट टर्म कितना है -4 प्लस 5D, D हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 5D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 5D इज इक्वल्स टू 10। So D is equal to 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हमारे पास आ गया D। अब अगर हमारे पास D आ गया है तो हम इजीली क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर वी कैन फाइंड आउट A2। व्हाट इज A2? A प्लस D। कितना है A? -4, D कितना आया है 2, तो 4 में से 2 गए -2। तो ये हमारा, अच्छा यहाँ लिखते हैं हम आंसर -4 और सेकंड क्या आ गया -2। अच्छा उसके बाद निकालना है A3, तो A प्लस 2D। A कितना है -4 प्लस 2, D कितना था 2। So here it will be -4, 2 2s are 4, that is equals to 0. So A3 आ गया 0. And now we have to find A4. What is A4? A plus 3D. A है -4 प्लस 3, D है 2। यहाँ आ गया -4, 3 2s are 6, 6 में से 4 गए 2, तो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी 2। अब क्या रह गया हमारे पास, A5 निकालना रह गया। तो A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। A है -4 प्लस 4, D है 2। सो -4, 4 2s are 8, -4 प्लस 8 इज 4। तो ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म, दैट इज 4, और लास्ट टर्म तो हमारी थी 6। ये हो गया कंप्लीट सम, राइट। अब हमारा लास्ट सम एक रह गया है, दैट इज द फिफ्थ सम। चलो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, दैट इज डैश 38 डैश 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 एंड -22। ओके, so how many terms we have to find? We have to find the first term A, second term हमारे पास है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, सिक्स टर्म है। अब हमारे पास यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है मतलब अब हम D डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर यहाँ पे अब हमें क्या मिलेंगी, हमें यहाँ मिलेंगी 2 इक्वेशंस। तो लेट्स फाइंड द 2 इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन हमें मिलेगी A2 से, तो लेट्स राइट हियर A2 इज इक्वल्स टू A प्लस D। ठीक है, A2 कितना है 38
8। ए हमारे पास है नहीं, डी हमारे पास है नहीं, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी A6 से। तो A6 क्या है? A6 है A प्लस 5D। A6 कितना है? -22। ए हमारे पास है ही नहीं, 5 एंड डी भी हमारे पास नहीं है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस, A प्लस D is equals to 38 and A plus 5D is equals to कितना है? -22। by elimination method change the sign। ये कट गया, 5 minus 5 plus 1 is -4D is equals to, ऐड करो 8 9 10, ऊपर गया 1 3 4 5 and 6। So D is equals to 60 over -4। reduce करो, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and D आ गया हमारे पास -15। ठीक है। अच्छा, अब D -15 आ गया एंड नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द अदर टर्म्स। तो पहली टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है हमें? फर्स्ट टर्म। तो वो डाल दो इसमें किसी भी एक इक्वेशन में। तो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। A कितना है हमें चाहिए, D कितना आया है -15 इज इक्वल्स टू 38। सो A इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15 कितना आ गया? 8 9 10 11 12 13 3 4 5 आ गया 53। तो ये आ गई हमारी कौन सी टर्म? ये आ गई हमारी फर्स्ट टर्म 53। डन। उसके बाद हमें कौन सी टर्म निकालनी है? वी हैव टू गेट थर्ड टर्म A3। क्या है वो? A प्लस 2D। ए की वैल्यू क्या है? अभी निकाली हमने 53 प्लस 2। डी की वैल्यू क्या है? -15। सो 53 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 15 इज 30 और कितना आ गया? 52 माइनस 30 इज 23। ये क्या आ गया? ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड टू मोर टर्म्स। एक है A4, A प्लस 3D। A कितना है? 53 प्लस 3, D कितना है? -15। सो 53 माइनस प्लस minus 3 into 15 is 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 4 45। 53 minus 45 is 8। ये आ गई fourth term। Now we have to find the fifth term। So A5 is equals to A plus 4D। A फर्स्ट टर्म यानी कि 53 प्लस 4 इंटू डी है -15। सो 53 प्लस माइनस माइनस, 5 4s are 20, 4 1s are 4, 5 6 60। सो 53 माइनस 60 -7, ये आ गया हमारे पास A5। ठीक है। Now let's move to the next sum, that is the fourth sum. And here it says, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? तो ये 78 कौन सा टर्म है? मतलब देखो, ये A टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टर्म है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो टेक दिस वन एज द nth टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे an इज इक्वल्स टू 78। अब हमारे पास तो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं। a कितना है? a 3। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए n। तो n यहाँ पे n ही तो फाइंड आउट करना है, तो वी नीड n। कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? d कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8 माइनस 3 कितना है? 8 माइनस 3 5। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ये an कितना है? 78 nth टर्म। a कितना है? 3 प्लस n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड -1, d is 5। ओके, 78 minus 3 is equals to n minus 1 into 5।
78 में से 3 गए, 8 minus 3 is 5 is equals to n minus 1 into 5. अब ये 5 दूसरी तरफ नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, n minus 1. ये क्या हो गया? 5 1s are 5, 5 5s are 25. So n minus 1 is equals to 15. n is equals to 15 plus 1. Therefore, n is equals to 16. तो ये जो 78 है वो कौन सा टर्म है? वो 16th टर्म है. तो यू कैन राइट हियर n is equal, अच्छा n की वैल्यू निकाली थी, n is equals to 16. So 78 is the 16th term of this AP. क्लियर? तो यहाँ पे मेजर जो फॉर्मूला जो थ्रू आउट यहाँ पर यूज हुआ है वो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो ये वाला फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टिल नाउ. ठीक है? एंड दैट्स इट फॉर टुडे. And the rest of the questions we will continue in the next video. Don't forget to like, share and subscribe.